Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today is our second lecture on contract of sale of goods. In our previous lecture, we have discussed a brief history about contract of sale of goods, and we have discussed what is contract of sale of goods, what is contract of sale, and what is an agreement to sell. And furthermore, we have already discussed that what are the essentials for a contract of sale. Now, in today's session, we will discuss what is the difference between an agreement to sell and contract of sale. So, let's start our today's lecture. Firstly, as you know, we are discussing in today's section about contract of sale, and my name is Hafiz Muhammad Salman. The things we will discuss in today's lecture will be introduction of today's lecture, after that a little bit recap about our previous lecture, and further that we will discuss meaning of contract of sale and meaning of an agreement to sell, and lastly we will discuss what is the difference between sale and agreement to sell. So before introduction, I want to start my today's discussion with recap of our previous lecture. As you know, that Sale of Goods Act was part of Contract Act 1872, and after that in 1930 a separate act was introduced, namely Contract of Sale of Goods Act. As you know, Contract of Sale of Goods Act deals only with movable goods. So immovable property and immovable property cannot be discussed under the head of contract of sale of goods. And furthermore, we have discussed in previous lecture what are the essentials of valid contract for contract of sale of goods. तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स की अगर हम इधर यहाँ पे बात करें तो व्हाट वर द एसेंशियल्स which we have discussed in our previous lecture. As you know, if you remember, that the first essential is that there must be a valid contract between a seller and the buyer. Further that we have discussed that there must be at least two parties, and that two parties separate should be separate parties. यानी कि जो the seller must be the different person from the buyer, and the buyer must be the different person from the seller. It means that a person cannot buy or sell the things from himself. एक बंदा अपने आप से कोई चीज ना खरीद सकता है अपने आप से, ना ही अपने आप को कोई बंदा कोई चीज बेच सकता है. तो ये दोनों बंदे डिफरेंट होने चाहिए. दूसरी हमने इसमें चीज ये देखी थी कि the property transfer of property must be uh, uh, immediate in contract of sale, and in an agreement to sell it may be on transfer of property may be on some later date. और लास्ट लेक्चर में अगर हम उसकी बात करें तो हमने सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्रॉपर्टी इसमें सॉरी प्रीवियस पॉइंट से रिलेटेड हमने ये भी चीज़ देखी थी कि यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी से मुराद यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी की बात होगी. यहाँ पे ये बात नहीं हो रही होगी कि खाली इसको उठा के ट्रांसफर कर दिया, यानी एक बुक है ये मेरे पास, मैं इसको उठा के पर्सन इधर से उठा के इस बंदे को दे दूं तो ये मैं उसको सेल यानी इसकी ओनरशिप राइट्स नहीं देता, तो यहाँ पे वैलिड ट्रांसफर कंसीडर नहीं होगी. ये ट्रांसफर वैलिड होने के लिए यहाँ पे ये चीज जरूरी है कि मैं उसकी ओनरशिप भी दूसरे बंदे को दूं. अगर मैं ओनरशिप प्रोवाइड नहीं करता, खाली उसकी
पोजेशन प्रोवाइड करता है तो ये वैलिड ट्रांसफर नहीं होती अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। इसके बाद हमने देखा था कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स शुड बी मूवेबल प्रॉपर्टी। अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फॉर एग्जांपल कि किसी बंदे का प्लॉट है या कोई घर है, तो जैसे कि राइटली पॉइंट आउट भी आपने किया था, मैंने यहाँ पे वो एग्जाम्पल में लिखा भी था कि वो एक बंदा घर दे रहा था, तो किसी ने एंड पे वो पॉइंट आउट किया था कि घर तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। तो मैंने ये बताया था कि वो घर अभी आप ये ना समझें कि वो इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला, मैं ये बता रहा हूँ कि अगर वो डायमंड का घर है, जस्ट एक जो है ना वो कह लें कि वो आपने रखा हुआ है, शो पीस रखा हुआ है, तो डायमंड का घर हम उसकी बात कर लें तो यानी मूवेबल गुड्स ही होंगी इसका सब्जेक्ट मैटर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में इमूवेबल गुड्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि प्राइस जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, एक इंपॉर्टेंट एसेंशियल है प्राइस, कि अगर चीज़ों के बदले में खाली चीज़ ही दी जा रही होगी तो फिर भी वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल वैलिड नहीं होगा, बल्कि वो एक बार्टर सिस्टम होगा जिसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स रिकॉग्नाइज नहीं करता। और कल को अगर कोई इशू हो जाता है बाद में, इस तरह की चीज़ों की एक्सचेंज के बाद कोई इशू हो जाता है, तो किसी भी पार्टी के पास ये राइट नहीं होगा कि वो अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जाके कोर्ट से रेमेडी क्लेम कर सके, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उसमें प्राइस मिसिंग थी, एक एसेंशियल एलिमेंट मिस था। तो ये जब भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स होगा तो उसमें प्राइस का होना एक जरूरी और जो है ना वो लाजमी अंसर है। अगर ये यहाँ पे प्राइस नहीं होगी तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होगा। दूसरी और एंड पे हमने ये देखा था कि अदर फॉर्मेलिटीज ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी किसी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो एसेंशियल जरूरी होते हैं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए कौन से एसेंशियल जरूरी होते हैं? हाँ जी, वो तमाम एसेंशियल्स जो हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 10 में देख चुके हुए हैं कि ऑफर एक्सेप्टेंस कंसिडरेशन, वो कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, वो सारी की चीज़ें आपको होपफुली याद होंगी। लीगैलिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, सर्टेनिटी ऑफ सब्जेक्ट मैटर, कंसिडरेशन, तमाम की तमाम चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के लिए भी ज़रूरी हैं। अगर उनमें से कोई एक चीज़ भी मिस होगी और इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के एसेंशियल में से कोई चीज़ मिस होगी और अदर एसेंशियल में से कोई एक भी चीज़ मिस होगी तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, बल्कि किसी सूरत में ये वॉइड हो जाएगा और किसी में वॉइडेबल हो जाएगा। ठीक है, और किसी में वॉइड हो जाएगा, किसी में वॉइडेबल हो जाएगा, और किसी में अगर ये तमाम की तमाम चीज़ें पूरी होती हैं तो जाके फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बिल्कुल वो वैलिड हो सकता है। तो अभी हम आज के लेक्चर की तरफ आते हैं। आज के लेक्चर अगेन हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमने आज के लेक्चर में असल हमारा पर्पज है क्या, कि आज के लेक्चर में हमने क्या डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन फोकस है आज के लेक्चर का, वो है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। तो इसके लिए ये चीजें जानना जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है क्या, लॉ क्या बताता है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, और क्या एग्रीमेंट टू सेल क्या चीज है, लॉ इसके बारे में क्या बताता है। जब हमें इन चीजों का अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सॉरी अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है, और अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट एग्रीमेंट टू सेल क्या है, तभी जाके हम ये कैपेबल होंगे कि इस चीज के लिए कि हम इनका आपस में डिफ्रेंशिएट कर सकें इन चीज़ों को, कि कब वो एग्रीमेंट टू सेल है और कब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। और अगर एग्रीमेंट टू सेल है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, और अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं जी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से, कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। ये 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 सेक्शन 4 इसको डिफाइन कर रहा है। लेकिन अभी ये मैं एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ कि जैसे कि प्रीवियस आप मिड टर्म में भी देख चुके हैं कि ये सेक्शंस और ये डेट्स, ये वाकई ये आप देख भी चुके हैं, अब आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ये रियली बड़ी मैटर करती हैं और ये आपको याद होनी चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आप अपने इम्पोर्टेंट मार्क्स जो है वो लूज कर दे फाइनल एग्जाम में भी। तो डेट्स और सेक्शन आपने याद करने हैं, ये साथ ही याद करते चले जाए। तो अब बात करते हैं कि सेक्शन 4 हमें क्या बताता है। सेक्शन 4, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द एक्ट, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल मीन्स a contract where the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for price.
सेक्शन 4 हमें यह बताता है कि ये किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, जहां पे एक सेलर, फॉर एग्जांपल मैं सेलर हूं, तो मैं क्या कर रहा हूं कि मैं ट्रांसफर, मैं वो प्रॉपर्टी, जैसे ये बॉक्स में दिखाया जा रहा है कि मैं वो प्रॉपर्टी अगले बंदे को दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांसफर से मुराद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप ऑफ दैट प्रॉपर्टी, कि ये मैं प्रॉपर्टी उसको दे दी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। और एग्रीज टू सेल और एग्रीज टू ट्रांसफर, या मैंने एग्री किया उस बंदे से कि मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा भाई, ये अगले हफ्ते में आ जाएगा, स्टॉक आ जाएगा, मैं आपको ट्रांसफर करूंगा, परेशान ना हो, ये कल प्रॉपर्टी आ जाती है, ये मेरे पास पड़ी है, मैं अभी आपको दे देता, मेरा भाई गया हुआ उसने लॉकअप में रखी हुई थी, वो आ जाता तो मैं दे देता हूँ। तो आपने क्या किया, एग्री किया। तो या आप फौरन से ट्रांसफर कर देते हैं, या आप एग्री करते हैं कि मैं आपको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दूंगा, बदले में प्राइस लेनी है, फिर ये एग्रीमेंट टू सेल, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। अगर बदले में ले रहे वैसे ही दोस्त को दे दी चीज, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं है, वो गिफ्ट हो सकता है या कोई और चीज हो सकती है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए जरूरी है कि आपने जब इधर इस हाथ से अगर वो चीज दी है, तो इस हाथ से आपने दूसरे बंदे से पैसे भी लेने। तो जब एक बंदा चीज बेच रहा है और इवज में उसकी कीमत ले रहा है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की ये तो जनरल टर्म हो गई, यानी जनरल डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4, कि एक बंदा जब चीज बेच देता है या वो एग्री करता है कि वो चीज बेचेगा, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कहेंगे इन इन जनरल टर्म्स। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की आगे फर्दर टू टाइप्स आएंगे, टू कैटेगरीज हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की। वन इज सेल एंड अदर इज एग्रीमेंट टू सेल। दोनों डिफरेंट हैं, और दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट हैं। कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट किस तरह से, कि अगर सेल होती है और सेल होने के बाद चीज डैमेज हो जाती है, तो उसका लॉस कोई और बियर करता है। एग्रीमेंट टू सेल के बाद अगर चीज डैमेज हो जाती है, उसका लॉस कोई और बियर करता है। ये आगे जाके हम इसकी वो डिटेल्स देखेंगे, जब हम अभी डिफरेंस आज के लेक्चर के एंड पे भी देख रहे होंगे। तो अभी आपने देख लिया कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या चीज है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बाद हम अभी आगे बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ साथ इसकी जो है एग्जाम्पल के लिए। आप देख रहे होंगे कि एग्जाम्पल मैंने चेंज कर दी। कल यहाँ पे जो है एक घर था, आज मैंने उसकी जगह पे एक घोड़ा, एक हॉर्स यहाँ पे आपके लिए रख दिया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को अगर हम उससे हटके, सेक्शन 4 से हटके अगर हम इसको जनरल मीनिंग में देखेंगे, जनरल डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की क्या है जी, वेयर द सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप राइट्स। ठीक है, वहां पे जब आप सेक्शन की वर्डिंग देखते हैं, तो ओनरशिप राइट्स का वर्ड यूज नहीं हुआ, खाली ट्रांसफर का वर्ड यूज हुआ है। तो यहाँ पे क्लैरिटी आपको मिल गई कि वेयर द सेलर ट्रांसफर द ओनरशिप राइट्स टू द बायर इमीडिएटली ऑन मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बना, उसने ओनरशिप राइट्स उसको दे दिए, then it would be called contract of sale. Example, A sells his horse to B for 10 lakh. एक बंदा अपना घोड़ा बी को 10 लाख में बेचता है। इट इज, जैसे ही उसने एक घोड़ा उसको दिया, दूसरे बंदे ने अगर 10 लाख रुपया दे दिए, इट इज सेल सिंस द ओनरशिप ऑफ द हॉर्स हैज बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एग्रीमेंट टू, आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल अभी समझ आ गया होगा, इसकी एग्जांपल भी आपके लिए मैंने बता दी। अगर अभी तक आपको कोई चीज समझ नहीं आई, प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड हो चाहे, बल्कि मुझे चाहिए था कि मैं शुरू से ही पूछ लेता, तो अभी ज्यादा हम आगे नहीं गए। मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड अगर कोई चीज समझ नहीं आई आपको, तो आप पूछ सकते हैं। या आपको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से रिलेटेड जो जर्नल इसकी डेफिनेशन अभी मैंने आपके लिए बताई है, इससे रिलेटेड अगर कोई चीज समझ नहीं आई, तो अभी आप पूछ लें, फिर आगे हम फर्दर आगे आज के लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। जी। आ गई है बस, सर समझ। अच्छा चलें, अच्छी बात है, आपको समझ आ गई। अभी 1 मिनट का वेट करते हैं हम, अजान यहाँ पे हो रही है स्टार्ट, तो अजान के बाद आगे कंटिन्यू। तब तक आप सवाल सोच लें, अगर कोई सवाल है आपके जहन में आता।
जी, है कोई सवाल अभी आपके जहन में कोई आया है इससे रिलेटेड? नो सर। व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? एग्रीमेंट टू सेल, ये एक बात जहन में रखें कि ये सेल और एग्रीमेंट टू सेल सेम चीज नहीं है। ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं, और इनका फर्क अगर आपको समझ ना आया तो आगे बाद में डिफ्रेंशिएट करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। शुरू में ये फर्क आपने अच्छी तरह से समझ लेना, ठीक है? क्योंकि दोनों, ये फर्क इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये फर्क आप ना समझ सके तो आगे प्रैक्टिस में भी आपके लिए बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। फर्क आगे मुश्किल नहीं है, फर्क बड़ा आसान है, लेकिन इम्पोर्टेंट जरूर है इसको समझना, क्योंकि सारे केस इसी चीज पे ही बेस्ड कर रहे होते हैं। इन दोनों के कॉन्सिक्वेंसेज डिफरेंट हो जाते हैं। सेल में कॉन्सिक्वेंसेज कॉन्ट्रैक्ट के और होते हैं, एग्रीमेंट टू सेल में और होते हैं। और अगर आपको फर्क ना पता हुआ तो आप अपने क्लाइंट को वो जो भी उसकी जो रेमेडी बनती होगी वो आप नहीं दिलवा सकेंगे। सेल आपने जान लिया कि इसमें इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ पोजेशन एंड इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स सेल में होती है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, वेयर द ओनरशिप राइट्स आर टू पास ऑन सम फ्यूचर डेट upon fulfillment of certain conditions, then it is called an agreement to sell. एग्रीमेंट टू सेल में क्या हो रहा है कि ओनरशिप राइट्स का आप वादा कर लेते हैं, आपको किसी फ्यूचर डेट पे ये ट्रांसफर हो जाएंगे, अगले हफ्ते में ट्रांसफर हो जाएंगे, 10 दिन बाद हो जाएंगे, 15 दिन बाद हो जाएंगे, 20 दिन बाद हो जाएंगे। ये अभी आपने डिसाइड नहीं किया कि कब होंगे, लेकिन किसी आने वाले दिन में, आने वाले वक्त में डिसाइड होंगे, डिसाइड होगा। या आपने ये डिसाइड कर भी लिया, आपने ये कहा कि जी अगले हफ्ते में हो जाएगा ये, आज जो है ना डेट है 22 है, आप कहते हैं जी 28 को ये जो है वो आपको मिल जाएगी। ये अभी रमजान मुबारक आने वाला है, कि पहले अशरे में आपको ये चीज ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो आप आने वाले वक्त की बात कर रहे हैं, आने वाली दिन की बात कर रहे हैं, आने वाली तारीख की बात कर रहे हैं। तो अगर इस तरह से कोई बात चल रही है, एग्रीमेंट टू सेल किसी फ्यूचर डेट के बारे में हो रहा है कि तब आपको ये चीज मिल जाएगी, या अभी ठीक है आपको पसंद आ गई है, ये भी हो सकता है। ठीक है भाईजान, आप पैसे ले आए, चीज ले जाए, आपको चीज पसंद आई, जेब में हाथ डाल, ओहो मेरा तो वॉलेट घर रह गया। तो वो कहता है ठीक है कोई मसला नहीं, मैं रख लेता हूँ, आप जाके वॉलेट ले आए तो चीज ले जाए। तो अब वो उसने वो कर ली, अभी बेची नहीं है, एग्री कर लिया कि आप पैसे ले आएंगे तो वो आपको दे देगा। ठीक है, तो ये किसी फ्यूचर डेट पे, फ्यूचर टाइम पे, किसी सर्टेन कंडीशन के साथ ये चीजें मशरूत हो सकती हैं एग्रीमेंट की सेल में। जबकि सेल में चीज फौरन फौरन ही वो पोजेशन आगे और राइट्स ऑफ ओनरशिप फौरन ही ट्रांसफर हो रहे थे। जैसे कि जो लोग आप माँ जी घर से भेजें कि जाओ बेटा दही ले आओ, आपने उसको 100 रुपया दिया, किलो दही लेके आ गया, तो वो जो आपने प्राइस दी और उसने आपको बदले में वो दही दे दी है, तो दोनों चीजें, यानी उसने आपको वो ओनरशिप राइट्स दही के अब आपकी तरफ ट्रांसफर कर दिया, आपने उसकी कीमत उसको दे दी। ठीक है, तो ये सेल में फौरन फौरन हो रहा है। एग्रीमेंट टू सेल में आप गए हैं अपने भाई की जो है ना शादी के लिए घर के फर्नीचर वगैरह बनाना, तो उसमें आप जाके देखते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो कहते हैं ठीक है 10 दिन में आपको तैयार कर दें, वो एग्रीमेंट टू सेल होगा। दूसरी एग्जाम्पल, आप गाड़ी लेने जाते हैं, टोयोटा के शोरूम पे जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है 3 माह बाद, 2 महीने बाद, 15 दिन बाद, 20 दिन बाद आप गाड़ी ले जाए, अभी बुकिंग करवा लें, एग्रीमेंट टू सेल वो कर रहे हैं। ठीक है, तो अब उम्मीद है कि आपको फर्क समझ आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो अभी आप पूछ सकते हैं एग्रीमेंट टू सेल से रिलेटेड या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से। है जी किसी स्टूडेंट को कोई सवाल? आप को जो चीज़ समझ नहीं आ रही, सवाल आपको ये राइट है कि तमाम लोग इसमें सवाल पूछा करें, ताकि, और इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। बात बात ये होता है कि स्टूडेंट्स ये सोच रहे होते हैं कि कोई दूसरा पूछ लेगा, चलो मुझे भी पता चल जाएगा, और सारे इसी चक्कर में बैठे रहते हैं, तो पूछता कोई भी नहीं है। आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही, बिल्कुल आप तमाम लोगों का ये राइट है कि आप फ़ौरन से मुझे रोकें और उसमें पूछ सकते हैं, लेकिन फ़ौरन से रोकने से मुराद यहाँ पे ये है कि जो स्लाइड मैं वो कर रहा हूँ उसके एंड पे, आप हर स्लाइड के एंड पे जो है सवाल कर सकते हैं, तो वो सब। एग्रीमेंट टू सेल की एग्जांपल। वालेकुम सर। जी, वालेकुम एक्सक्यूज अस्सलाम। मी सर। जी, सर ये लास्ट लेक्चर रिपीट कर रहे हैं आप? लास्ट लास्ट लेक्चर अभी आई थिंक आपने शुरू से आज का लेक्चर सुना है कि बाद में सुना, नहीं सर, दरमियान मैंने में लेट ज्वाइन किया? ज्वाइन किया है।
बस फिर इसीलिए मैं क्लास में भी आपको यही बातें समझाता रहता हूँ कि दरमियान में अगर आए तो आपका बोलने का राइट नहीं होता। ठीक है, शुरू राइट में सर। मैं आज के लेक्चर में बता चुका हूँ कि ये 2 से 3 चीजें हैं जो कि ये दोबारा से मैं उनको फोकस कर रहा हूँ अगली चीजें जानने के लिए। अगर आप ये चीजें नहीं समझेंगे तो आज जो डिफरेंस पढ़ना उसके लिए सेल और एग्रीमेंट टू सेल का जानना जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 चीजें सिर्फ लास्ट लेक्चर में रिपीट हो रही हैं, 2 चीजें सेल और एग्रीमेंट टू सेल। बाकी जो आगे हम पढ़ेंगे वो इन चीजों की बेस पे आगे चीजें पढ़नी है आज के लेक्चर में। ठीक है, जी आज का सर। लेक्चर हमारा है क्या, बेसिकली मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज बताई थी कि आज का लेक्चर हमारा डिफरेंस बिटवीन एग्रीमेंट टू सेल एंड सेल से रिलेटेड है। तो अभी जो हम चीजें पढ़ रहे हैं क्या ये डिफरेंस में नहीं आती, जो मैं चीजें अभी तक बता रहा हूँ? हाल तो लास्ट लेक्चर बिल्कुल में भी आती ये है। चीजें कवर हुई हैं। तो क्या ये डिफरेंस में आ रही है या नहीं आ रही? या बिल्कुल साथ आ के रही साथ है। आ रही है डिफ्रेंशिएट? सर। तो फिर आप किस तरह से कह रहे हैं कि ये वही तरह रिपीट हो रहा है? आल दो वो चीजें कुछ उसमें स्लाइड में उसी तरह से शो हो रही हैं, लेकिन हम उसको एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में आज के दिन बेटा पढ़ रहे हैं। आज के दिन वो मैं सिर्फ सेम कंफर्म कॉन्टेक्स्ट में कर रहा। चीजें नहीं चल रही। ठीक है, नहीं आप कंफर्म करने का वैसे ये तरीका नहीं होता जिस तरीके से आप कर रहे हैं, तो लेकिन खैर जो हो गया सो ठीक है, आपने अच्छा किया बता दिया आपके दिल में जो बात थी। लेकिन ये ख्याल करें कि अगर आप शुरू में लेक्चर नहीं सुन रहे तो फिर दरमियान में आपको कोई समझ नहीं आ रही कि आप किधर जा रहे हैं किधर नहीं जा रहे। एग्जाम्पल पे आज की बात करते हैं। ये भी आपको ये एग्जाम्पल जो जॉनसन वर्सेस मैक्योलन में समझाई जा रही है, ये आपको डिफरेंस बताया जा रहा है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल के बारे में कि क्या डिफरेंस है। सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस की अगर हम बात करें, जैसे कि पहले हमने काफी सारी एग्जांपल्स में इसको देख लिया, ये मजीद एक ये रियल केस लॉ आपके पास मौजूद है। इसकी मैं प्रीवियस लेक्चर में भी आपसे ये बताया था कि इसको डिटेल में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल का डिफरेंस अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या था जी, एक ने ए एग्रीड टू बाय फ्रॉम बी ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ नाइट्रेट ऑफ सोडा। उसने ये कहा था कि मैं कुछ क्वालिटी आपसे नाइट्रेट क्वांटिटी कुछ मकदार जो है नाइट्रेट सोडा की आपसे खरीदूंगा। उस बंदे ने कहा जी ठीक है, जब जहाज आएगा तो मैं आपको ये सोडा दे दूंगा। तो अभी क्योंकि जहाज उसके पास था नहीं, उसकी पोजेशन में था नहीं, नाइट्रेट सोडा उसकी पोजेशन में था नहीं, तो फ्यूचर की जब बात हो रही होगी तो ये एक एग्रीमेंट टू सेल होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं होगा। तो अभी ये जो हम बात करने लगे थे, अब ये जो बातें अब स्टार्ट होने जा रही हैं, ये चीजें अच्छे तरीके से समझने के लिए प्रीवियस सारी बातों को समझना और जानना जरूरी था। ठीक है, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर जो हम डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल की जो अभी हम डिस्कशन करने जा रहे हैं, अगर आपने ये प्रीवियस बातें ठीक से ना सुनी हो, ठीक से ना समझी हो, तो ये वाली बातें अभी आपको समझ नहीं आनी। तो अब हम बात करते हैं जी स्टार्ट। आज की जो पहली चीज है कि सेल क्या चीज है। अगेन सेल जानने के लिए आप सेक्शन 4 का शुरू वाला हिस्सा देख सकते हैं जो हमने आज शुरू के लेक्चर में वो डिस्कस किया कि ये इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स होती है से। ठीक है, ये डिफरेंस वाला एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अक्सर पेपर में एग्जाम में सवाल आ जाया करता है, क्योंकि अभी आपका उस तरह से एक वो लेंथी क्वेश्चंस नहीं आने आपके एमसीक्यूज में अगर आपकी यूनिवर्सिटी ना ओपन हुई फाइनल तक। तो फिर दूसरी ऑप्शन आपके पास सिर्फ यही है कि आपके एमसीक्यूज आएंगे, और एमसीक्यूज की सूरत में इस वाले एरिया से एमसीक्यूज हो सकता है ज्यादा बन जाए बाकी की नस्बत, क्योंकि इंपॉर्टेंट एरिया यहाँ पे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो रहे होते हैं। तो ये आपने अच्छे तरीके से इस पर ग्रिप कर लेनी। तो सेल क्या चीज है जी? सेल है जिस जहाँ पे इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स हो रही होती है और बदले में आपको प्राइस मिल रही होती है। एग्रीमेंट टू सेल क्या चीज है? एग्रीमेंट टू सेल में इमीडिएट राइट ऑफ इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट्स नहीं होते, बल्कि ये ऑन सम फ्यूचर डेट होता है या ऑन सम सर्टेन कंडीशन होता है। एग्रीमेंट टू सेल में वो राइट्स आगे किसी दिन में ट्रांसफर होने होते हैं, आगे किसी शर्त पे ट्रांसफर होने होते हैं, आगे किसी मुख्तलिफ डेट पे ट्रांसफर हो रहे होंगे, मुख्तलिफ किसी दिन पे ट्रांसफर हो रहे होंगे। दूसरा फर्क यह है कि ट्रांसफर ऑफ ये इधर आगे बल्कि वो यहाँ पे बताया भी हुआ, मैंने लिखा भी हुआ, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेल में ये जरूरी है कि आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करें। फॉर एग्जांपल, ये आप लेने के लिए गए, ये बुक थी, आपने उससे बात की कि जी ये मुझे बुक चाहिए, तो वो क्या करेगा कि बुक आपको उठा के दे देगा। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी
हो गई कि इस बंदे ने, ये ओनर ने, वो जो बंदा शॉपकीपर था उसने बुक उठाई आपको दे दी, ये ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप है। अब आपने इसको, फॉर एग्जाम्पल 300 रुपया था बुक का, आपने 300 रुपया दिया शॉपकीपर को, उन्होंने कहा जी बुक लेनी है कॉन्ट्रैक्ट की, उसने आपको बुक दे दी। लेकिन आपने वो शॉपर में डाली, बुक दी आपको, आप कोई और चीज, पोइट्री की बुक देखने लग गए या कोई और टेक्स्ट बुक देखने लग गए, आपको बॉल पॉइंट्स चाहिए थे, कोई नोटबुक चाहिए थी, आप उन चीजों में लग गए, तो वो जो बुक उसने दी थी वो बुक उसके काउंटर पे ही रह गई। अब बुक काउंटर पे रह गई, सवाल ये है कि क्या ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हो गई या नहीं हुई। आप उसके, मतलब उसने क्या किया था, आप गया, उसने कहा जी 250 रुपया की, आपने उसको 250 रुपया दे दिया, बुक उधर ही रह गई। अब बुक गुम गई है। अब आप घर आए, आपको याद आया, ओहो बुक तो मेरे पास है ही नहीं। अब फटाफट दुकान पे जाते हैं, दोबारा वापस जाते हैं, देखते हैं, कहता भाई इधर तो कुछ भी नहीं, आप ले गए थे। अब आपके ख्याल में काउंटर पे थे। ज्यादा से ज्यादा आप क्या करते हैं जनाब, वो जो कैमरा लगा, सिक्योरिटी कैमरा लगा, उधर से देखते हैं कोई बंदा आ रहा है, उठा के ले जाता है। तो इस सूरत में अब सेल हुई है अगर, तो और कॉन्सिक्वेंसेज हैं, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था तो और कॉन्सिक्वेंसेज। अब सेल, हम क्योंकि अभी पहले सेल देख रहे हैं, सेल में अगर बुक गुम गई है तो आपके ख्याल में अब क्या दुकानदार नहीं वो बुक देगा उसी कीमत में, या वो ये कहेगा कि नहीं भाई पैसे और दे दें तो बुक ले जाएं, या वो कहेगा कोई बात नहीं मेरी शॉप से गई है तो मैं आपको पे करता हूँ, तो मैं नई बुक दे देता हूँ। क्या नो सर, नहीं देगा। नहीं देगा सर। नहीं देगा? जी सर। क्यों क्यों नहीं देगा, उसकी शॉप से नहीं देंगे? सर क्योंकि उसने तो सर पोजेशन में दे दी थी उसकी। अच्छा, और कोई जवाब इसका कोई देना चाहे? सर उसने खुद अपनी रीजनेबल केयर नहीं की अपनी चीज की। हाँ उसने बिल्कुल। वो अब वो, चीज, जी जी, अब ये यहाँ पे यही बता रहा है कि उसने एक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया, ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट था। अगर आपको याद होगा, हम जब वो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे थे तो कॉन्ट्रैक्ट की नेचर थी कि एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होते थे, एक एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होते थे। एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट वो होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं, और एग्जीक्यूटरी क्या होते हैं, जो अभी साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ये जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन सेल होती है, ये जैसे इमीडिएट ट्रांसफर थी, उसने प्राइस दी, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो चुका। अब ये बंदा ऑनर था, उसने घुमा दी अपनी नेग्लिजेंस की वजह से, लैक ऑफ केयर की वजह से, या किसी भी वजह से। दुकानदार का इसके साथ कोई अमल दखल नहीं है। अगर ये होता कि ये बुक देख रहा होता और ये कहता भाई अच्छा ठीक है, ये बुक तो सही है, समझ आ रही है, लेकिन वो टीचर तो किसी और राइटर की बात कर रहा था, मुझे वो दिखा दे। वो देखता है, कहता है टीचर ने तो ये बात की थी कि ठीक है बुक, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आ रही, आप मुझे दूसरी कोई बुक दिखा दे। वो कहता अच्छा वो थोड़ी सी कॉस्टली है, वो कहता ठीक है। और वो तीसरी बुक दिखाता है, चौथी दिखाता है। आप चार किताबें देखते हैं, तो अब शॉप पे जैसे उर्दू बाजार आप कभी चले जाएं तो कभी पास शॉप से बड़ा रश होता है। आपने चार चार जो है ना वो देखी बुक, लेकिन जब वो दोबारा आप कहते हैं अच्छा जो वो पहले दिखाई थी ना मुझे वो पसंद है, वो शॉपकीपर देखता है वो उधर वो पहले जो बुक दिखाई है वो गायब हो चुकी है, रश में कोई बंदा उठा के ले गया। अभी आप का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं, अभी तो आप एग्री कर रहे थे उसके साथ कि आपने ये लेनी है, वो लेनी है, फलां लेनी है। इस सूरत में अगर बुक गुम गई है तो नुकसान किसका हुआ? सर शॉप वाले का। ठीक है सर। जी। एग्रीमेंट टू सेल और एग्रीमेंट टू सेल और सेल, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में यही फर्क है कि जब सेल हो जाती है, जब कोई प्रॉपर्टी बंदा अपनी सेल करता है तो सेल का जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो लॉस वही बंदा बेयर करता है जो सेलर है, सॉरी जो बायर है। सेल आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल, लॉस कौन बियर करेगा? जो उसका बायर था। अब सारा नुकसान उसी का हो रहा है। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में जो लॉस होता है वो बायर का लॉस नहीं होता, बल्कि वो लॉस सेलर का हो रहा है, बायर का इसमें कोई लॉस नहीं है। ठीक है। अब दूसरी चीज यहाँ पे एक और जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि गुड्स आर इन एग्जिस्टेंस। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए ये जरूरी है कि चीजें आपके पास मौजूद हों। फ्यूचर गुड्स पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे कि एक बंदा ये बात करता है कि जी मुझे ये फर्नीचर चाहिए,
किसी वो उसके पास गया फर्नीचर वाली शॉप पे जाके, उसने बताया जी मुझे फ्रिज ये एक बेड चाहिए, सोफा चाहिए, 2 चेयर चाहिए, एक टेबल चाहिए। वो कहते हैं जी ये जो सामने आप देख रहे हैं ना, ये तो खाली डिस्प्ले के लिए हमने लगाया हुआ है। अगर आप इसको वाकई खरीदना चाहते हैं तो आप हमें बताएं कि कौन सा डिजाइन आपको पसंद है, हम आपको जो है 3 से 5 दिन में तैयार कर देते हैं। वो प्राइस दे देता है उनकी, कहता है कि 3 से 5 दिन में आप तैयार कर दें। डिजाइन पसंद कर लिया, उसने कह दिया कि 3 से 5 दिन में आप मुझे तैयार करके दे दें। अब जी अब आपके ख्याल में अगर प्राइस दे दी है और उस शॉपकीपर ने ये कह दिया कि जी मैं 3 से 5 दिन में तैयार कर दूंगा, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है? अब बताएं। नो सर, नो सर। अब प्राइस वो दे चुका है, चीजें पसंद कर चुका है। तो ये एग्रीमेंट नहीं होगा? नहीं, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे सर मैं ये आपको एग्रीमेंट टू एग्रीमेंट सेल होगा होगा सर। सर, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट टू सेल होगा है। एग्रीमेंट टू जी सर। सेल की बात नहीं कर, एग्रीमेंट टू सेल और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, यहाँ पे सेल है वहां पे सेल है। एग्रीमेंट टू सेल होगा ये। एग्रीमेंट टू सेल होगा, वजह क्या है, क्यों एग्रीमेंट टू सेल होगा? सर क्योंकि उसने उसे को पोजेशन नहीं दिया, वो ओनरशिप इमीडिएट ट्रांसफर नहीं हुई उसमें। जी इमीडिएट बिल्कुल, पोजीशन होगी अभी उसमें। ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई, यही इसका जवाब है कि ओनरशिप अगर ट्रांसफर हो जाती, वो जो चीजें बनी हुई थी उनमें से अगर वो चीजें पसंद करके ले जाता, उसकी वो ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो जाती, उसकी पोजेशन उसको मिल जाती, तो बिल्कुल ये सेल हो जाती। अभी क्योंकि ना ओनरशिप ट्रांसफर हुई, ये चीजें अभी है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, अभी वो फ्यूचर गुड्स की कैटेगरी में आ रही हैं, तो इसलिए ये चीज एग्रीमेंट टू सेल में आती है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में नहीं आती। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल किस तरह से हो सकता है? आप किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे जाएं, आप इस मार्केट में चले जाएं, आपको एसी पसंद आते हैं, आप उसे कहते हैं 10 एसी ले जाएं, वो 10 के 10 एसी आपको पैक करता है, वो पिकअप में रखवाता है। तो ये क्या चीज़ है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है, क्योंकि चीज़ें मौजूद थी उसने दे दी। अगर इसी तरह से एसीओ वाली आप शॉप पे गए, आपको एसी चाहिए थे, उसने कहा जी 5 मेरे पास मौजूद है, 5 अभी ले जाएं, 5 सुबह ले जाएं, तो वो पीछे गोदाम में पड़े हैं, या मैं घंटे तक मंगवा देता हूँ आपको। एसी एसी सारे मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं गोदाम में पड़े, दुकान में नहीं रखे हुए, तो आपको घंटे तक मंगवा देता हूँ। अब एसी, अब इस एग्जांपल में क्या बात हो रही है? एसी शॉपकीपर के पास है, उसकी पोजेशन में तो है, लेकिन अभी उस मौके पे मौजूद नहीं है, उसने कहा कि मैं घंटे तक मंगवा देता हूँ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा या एग्रीमेंट टू सेल होगा? सर ये भी एग्रीमेंट टू सेल होगा। बिल्कुल, ये भी एग्रीमेंट टू सेल होगा, क्योंकि अभी पोजेशन डिले है, 1 घंटा की डिले में है पोजेशन। जैसे ही वो पोजेशन और राइट्स ऑफ ओनरशिप ट्रांसफर करेगा, और जैसे ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए। ये चीज ध्यान में रखनी है कि सेल में दोनों चीजें साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, एक ही वक्त में होनी चाहिए, कि एक बंदा उसकी पोजेशन दे रहा है, उसकी ओनरशिप राइट साथ में दे रहा है, और दूसरा बंदा साथ में उसकी प्राइस दे रहा है। जबकि फ्यूचर गुड्स में क्या चीज हो रही है? फ्यूचर गुड्स में चीजें अभी मौजूद नहीं होती, चीजें बनाई जानी है। जैसे कि मैं अभी कई दफा आज के लेक्चर में ये बात रिपीट कर चुका हूँ, जैसे फर्नीचर की बड़ी अच्छी मिसाल है, इससे हटके भी कई मिसालें और भी हो सकती हैं फ्यूचर गुड्स में। अगर आपको यहाँ पे शेयर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। एक वो हम जब छोटे थे, अब तो इस चीज पे पतंगबाजी पे पाबंदी है, तो वो बाज का वो पसंद के लिए पहले ही वो डोर का ऑर्डर दे के आते थे कि जी ये जो है ना इतनी फलानी चाहिए, इतनी फलानी चाहिए, तो वो कहते थे वो उसके लिए एक टर्म यूज करते थे, वो डोर अभी वो लगा देंगे जी आपको उस पर, वो जो केमिकल था ऊपर वो लगाते थे। तो वो अभी वो मतलब ये कि फ्यूचर के लिए ऑर्डर दे के आते थे, जब अनाउंस हो जाता था कि इस डेट को पसंद है, तो वो पहले ऑर्डर दे के आना होता। तो वो अभी वो यानी वो तैयारी उसकी होनी होती थी अभी, या जब पतंग पतंग का ऑर्डर दे देना कि जी हमें पसंद के लिए 50, 100, 150 ये जितनी भी पतंग चाहिए, तो वो ये चीज जो होती है कि अभी वो पतंगे उसके पास बनी नहीं पड़ी, उस बंदे ने बनानी है। ठीक है, तो अभी वो बनाएगा फिर वो बेचेगा, तो अगर वो बनाएगा और फिर बेचेगा तो ये एग्रीमेंट तो सेल में आएगा, और अगर उसके पास चीजें मौजूद हैं, स्टॉक में है, और वो फौरन फौरन दे देता, तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेल में आएगा। अब आगे है जी रिस्क ऑफ लॉस। सेल में हमेशा जो लॉस अगर कभी हो जाए, खुदा ना खास्ता, तो ये बायर का ही लॉस होता है। रिस्क ऑफ लॉस जो है ना ऑलवेज सफर्ड बाय द बायर इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जबकि इन एग्रीमेंट टू सेल रिस्क ऑफ लॉस ऑलवेज सफर्ड बाय द सेलर।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इसको समझने के लिए हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अब एक चीज बेच दी एक बंदे ने, पर्सन ए ने पर्सन बी को एक मोबाइल बेचा, ठीक है, यूज्ड मोबाइल बेचा। अब वो बंदा खरीद के ले गया, उसमें उसने अपनी हर तरह से तसल्ली कर ली खरीदते वक्त के इसमें, या एक्सपर्ट साथ में लेके गया, उसको दिखाया हर तरह से। अब तसल्ली करके ले गया, घर जाके उसको पता चला इसमें तो फलानी फलानी खराबी है। अब वो सारे का सारा लॉस बायर को ही बर्दाश्त करना पड़ेगा, उसका कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, सेलर आता है, सेलर जो है ना वो चीजें बनाता है, बायर आता है लेने के लिए, जिस डेट जो डेट उसको कन्वे की गई थी कि आप इस डेट को आगे चीजें ले लें, उसको उसकी क्वालिटी पे हल्का सा शक भी पड़ता है कि नहीं नहीं वो जो सैंपल में थी इसी और तरह की है, ये और तरह की, वो इनकार कर देता है कि भाई मैं नहीं लेता। तो अब उसने इस बंदे के लिए चीजें तैयार की थी, सारा नुकसान किसको गया, इसकी लेबर सारी गई। अब वो पता नहीं नया बायर कब आता है, कितने दिनों बाद आता है। इसने जो नुकसान, इसने जो इनकार किया, क्यों किया, इसका इनकार बिल्कुल वैलिड है कि वो स्टैंडर्ड पे है ही नहीं, जो सैंपल दिखाया था वो और है, चीजें और है। तो इधर हमेशा अगर रिस्क होगा किसी तरह के लॉस का, तो वो रिस्क बियर करना पड़ेगा इसको, जो सेलर होगा, जबकि सेल में रिस्क बियर करना पड़ता है बायर को। आगे हम बात करते हैं कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच। सेल में अगर किसी तरह की ब्रीच होती है, कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच होती है, तो सेलर कैन सू फॉर प्राइस। कॉन्ट्रैक्ट हुआ ए और बी के दरमियान में कि जी ये लें, फॉर एग्जाम्पल बाज का ये भी होता है। अच्छा ये शुरू में मैं शायद ये चीज़ें आपको मेंशन नहीं की कि अगर एक चीज़ की प्राइस 10,000 रुपए थी, सेलर ने एक कह लें कि एक मोबाइल था, उसकी 10,000 रुपया कीमत थी। अब सेलर ने क्या किया है कि उसको बताया कि 10,000 कीमत है, बायर ने कहा 5,000 अभी ले लें, 5,000 मैं बैंक से लेके आके आपको देता हूँ। तो ये क्योंकि प्राइस का कुछ हिस्सा भी मिल जाए अगर, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ही आता है, वो एग्रीमेंट टू सेल में नहीं जाता। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल तो हो गया, अब वो बाद में ये बंदा गायब ही हो गया, वो लेता ही नहीं है, वो कहता नहीं नहीं मुझे कोई और मोबाइल पसंद आ गया, मैंने ये नहीं लेना। यानी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होने के बाद अब अगर बायर अपनी बात से फिरेगा, तो सेलर के पास ये राइट आता है कि वो उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, उसके अगेंस्ट अदालत में जा सकता है। और अगर अदालत में जा सकता है तो अदालत में क्या कहेगा, जाके रेमेडी क्या मांगेगा, ये नहीं कहेगा कि जी ना मैंने इससे कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, क्योंकि उसमें तो उसका नुकसान है, वो तो चीज बेचेगा तो फायदा होगा। तो वो उसमें अदालत में जाके ये कह सकता है कि जी मुझे इस चीज की प्राइस दी जाए, जितनी का इसने मेरे से एग्री किया था, मुझे इसके बाकी पैसे लेके दे। जबकि कॉन्सिक्वेंसेज, अगर हम एग्रीमेंट टू सेल की बात करें, तो यहाँ पे कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ब्रीच जब अगर उनके ऊपर हम बात करेंगे, तो सेलर कैन सू फॉर डैमेजेस। सेलर प्राइस एग्जैक्टली नहीं मांग सकता। अब यहाँ पे जो अभी आपको फर्नीचर वाली मिसाल दे रहा था इससे पहले, अब ये बंदा इनकारी हो जाता है, नहीं वो अप टू द स्टैंडर्ड नहीं है, ये अप टू द मार्क नहीं है, ये वैसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो अब इसने जो लेबर वगैरह लगाई है, ये कहता है कि नहीं बिल्कुल उसी तरह से, कोर्ट भी कहती है कि ये उसी तरह से। अब ये बंदा नहीं मान रहा, हट धर्मी पे टिका हुआ है, तो अदालत ये कह सकती है ठीक है भाई तुमने नहीं लेना तो उसके, या इसके फॉर एग्जाम्पल हर चीज सही है, एग्रीमेंट टू सेल हुआ था, इसने कहा जी मैं अगले हफ्ते फर्नीचर ले जाऊंगा, अब अगले हफ्ते ये इनकारी हो गया। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है कि एक बंदे ने फर्नीचर इसलिए लेना था कि उसकी बेटी की शादी थी, अनफॉर्चुनेटली बेटी एक्सीडेंट में फोत हो गई। बेटे, अल्लाह ना करेगा किसी के साथ ऐसा हो, अगर खुदा न खास्ता ऐसा हो गया, अब इसको फर्नीचर की तो जरूरत है नहीं, इसका किस काम का वो फर्नीचर। अब लेकिन जिसने बनाया उसने उस पर लेबर लगाई है, उसने लकड़ी मंगवाई है, उसने, वो अगर कह रहा है कि भाई ये चीजें खरीदो, ये कहता है मैंने खरीदनी नहीं है क्योंकि इसके काम की नहीं है, तो जो सेलर था वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि ठीक है आपने नहीं खरीदनी, तो मैंने इन दिनों में आपके लिए जो है ना, आपने कहा था 3 दिन में ऑर्डर चाहिए, मैंने ये लेबर जो है ना महंगी लेबर खरीदी है जिन्होंने अर्जेंट बेसिस पे काम किया, कितना मेरा नुकसान हुआ ये आप अदा कर दें। तो इधर वो डैमेजेस मांग सकता है एग्रीमेंट टू सेल में, जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में वो प्राइस मांगेगा। आगे आता है जी राइट ऑफ रीसेल। ये बात जहन में रखें, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बंदा जो सेलर था उसके पास कतन ये राइट नहीं होता कि वो एक दफा चीज बेचने के बाद दोबारा भी वो रीसेल कर रीसेल कर दे। मसलन
मैं जैसे कि शुरू में अभी आज बात कर रहे थे कि एक बुक मैंने खरीदी और मैं उस शॉप पे भूल गया। अब ये राइट, वो जो सेलर था उसको पता चल गया कि बुक ये बंदा भूल गया। ये नहीं होगा कि नया कोई और बायर आए तो वही बुक उठा के ये किसी और को दे दे, ठीक, और मुझे कहते ले जाइए, वो मैं उसको इनकार नहीं कर सकता, आप अपने पैसे ले जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। अब वो किताब मेरी थी, मैं चाहूँ तो बेचूं, जिसको चाहूँ बेचूं। ये बंदा अब उस चीज से निकल चुका है, अब इसकी ओनरशिप से निकल चुकी है, तो इस बंदे के पास जो सेलर होता है वो एक चीज को एक ही दफा बेच सकता है। अब जो न्यू ओनर है वो उस चीज को चाहे तो वो बेचे, वो प्रीवियस सेलर उसको एक चीज को दो दफा नहीं बेच सकता। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में इसके पास जो सेलर होता है उसके पास राइट टू रीसेल होता है। जैसे कि अभी प्रीवियस एग्जांपल में भी हम देख रहे थे कि फर्नीचर अब बंदे को जरूरत नहीं है, तो ये थोड़ी होगा कि ये अब उसको दुकान में सजा के रखेगा या इसको हमेशा हमेशा रखना पड़ेगा, किसी और को सेल भी नहीं कर सकेगा। बिल्कुल ये सेल कर सकता है, इसको नहीं, कोई नया कोई उसका कस्टमर आता है उसको सेल कर दे। तो यहाँ पे इसके पास राइट होता है सेलर का कि ये चीज को दोबारा भी रीसेल कर सकता है। जबकि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ये राइट उसका छिन जाता है। तो जब एक दफा चीज बेच दी तो वो हमेशा के लिए बेच दी, अब इसका उसके पास उसके बाद कोई राइट नहीं रहता। लास्ट जो इसमें चीज इंपॉर्टेंट है वो है जी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। ये हर तरह से कंप्लीट है, इसमें किसी तरह की कोई कमी बेशी नहीं है। तो ये जैसे ही एक बंदे ने ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर किया, दूसरे ने उसको उसकी जो प्राइस थी, कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल हो गया। इसके बाद पार्टीज का आपस में कोई लेना देना कोई चीज बाकी नहीं रहती। जबकि एग्रीमेंट टू सेल में कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी इन नेचर होता है कि अभी बातचीत उनकी चल रही होती है। कॉन्ट्रैक्ट का कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ एडवांस पैसे दिए हों, बात का बल्कि अक्सर ही ऐसा होता है कि अगर आप फर्नीचर लेने जाएं वो कहते हैं जी अच्छा आप हमें आधी कीमत दे दें, बाकी आधी जब फर्नीचर तैयार हो तब दे दें। तो एक बंदे ने कुछ कीमत दे दी है, दूसरे ने उस पर काम शुरू कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट तब मुकम्मल होगा जब इसको उसकी पोजेशन मिल जाएगी। तो मीन वाइल ये जो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा ये एग्जीक्यूटरी इन नेचर होगा। तो अभी आज के लेक्चर के हम अगर कंक्लूजन की तरफ चलें तो बल्कि कंक्लूजन पे जाने से पहले अभी फिलहाल मुझे आप ये बता दीजिए कि इस वाले एरिया से रिलेटेड, डाल दो मैंने कोशिश की है कि हर पॉइंट को मैं डिटेल में आपको समझा दूं, फिर भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। ये है किसी का सवाल? कोई आवाज आ रही सबको? सर वो अहमद हसनैन पूछ रहा है क्वेश्चन मैसेज में। नहीं, मैसेज तो मैं बेटा देख नहीं रहा, मैं मेरे सामने तो ये स्लाइड्स ही ओपन है। आप बोल के पूछें, अपना माइक ओपन करें और बोल के पूछ लें। अब जो भी सवाल कर रहे होते हैं बोल के पूछा करें, दोबारा मैं समझा। मैसेजेस में ना पूछा करें, क्योंकि उस तरह से वो ये स्लाइड मेरे सामने यही जो अब आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है, मेरे सामने भी यही चीज नजर आ रही, तो मुझे राइट आपसे वो। राइट ऑफ रीसेल पूछ रहा है सर वो। जी, उसका माइक शायद खराब है। एक मिनट फिर मैं देखता हूँ इसका सवाल बैक इंतजार कीजिए, क्या सवाल है। द राइट द राइट ऑफ रीसेल एक्सप्लेन कर। हाँ जी, राइट ऑफ रीसेल जो मैंने यहाँ पे बात की थी, ये आई थिंक ये यहाँ पे बात की थी कॉन्ट्रैक्ट का, ये सेल का सेकंड लास्ट पॉइंट जो था कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है इसमें सेलर के पास राइट ऑफ रीसेल नहीं होता। मसलन पर्सन ए, ये वाला हाथ मेरा पर्सन ए के तौर पे अगर आप समझें इसको, ये पर्सन ए है, इसने ये बुक 100 रुपए में पर्सन बी को सेल कर दी। अब ये बुक इसकी हो गई है, इसकी बुक ये नहीं रही। अगर इसकी ये बुक नहीं रही तो अब ये वाला जो हाथ है ये दोबारा इस किताब को नहीं सेल कर सकता। ये अब ये मालिक ये है, ये जिसको चाहे सेल करे। जैसे कि अहमद हसनैन ने ये सवाल पूछा, अहमद के पास एक बुक थी, ये बुक अहमद के पास थी, अहमद ये बुक 500 रुपए में जो है वो उजैर को सेल कर देता है, ठीक है। अब दोबारा एक दफा उजैर को सेल कर दी, 500 रुपए रिसीव कर लिया, तो अब अहमद के पास ये राइट नहीं है कि वो उजैर वाली बुक जो अब उजैर की हो चुकी उसी बुक को अहमद जो है ना वो कहे कि मैं वो निशान को सेल करता हूँ या अरशद को मैं दोबारा सेल नहीं करता, तो उसको नहीं सेल करता। एग्रीमेंट टू सेल में ये चीज राइट टू रीसेल सेलर के पास होता है कि आज मतलब मैंने आपसे एग्री किया था कि मैं अगले हफ्ते ही मेरे एग्जाम खत्म हो जाएंगे, मैं ये बुक आपको सेल कर दूँ, ठीक है।
एग्री किया था, अभी बेची नहीं थी। अगले हफ्ते में जो है ना आप मेरे से रब्ता ही नहीं करते। मैंने कहा था कि संडे वाले दिन आप मेरे से रब्ता कर लेना, मैं आपको सेल कर दूंगा। आपने संडे को मेरे से कोई रब्ता ही नहीं किया। अब मेरे पास ये राइट है कि मैं जो आपसे वादा किया था, आपसे एग्रीमेंट किया था, उसको मैं तोड़ूं, मैं किसी और को सेल कर दूं। तो ये मैं कर सकता हूँ। एग्रीमेंट टू सेल में मैं इस चीज़ को कर सकता हूँ कि किसी और को भी सेल कर सकता हूँ, और जो है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में किसी और को सेल नहीं कर सकता। अभी समझ आ गई आपको या अभी नहीं आई, बता दें। जी सर, थैंक यू। आगे समझ। ठीक है जी। अभी आज का अगर हम लेक्चर इसके कंक्लूजन की तरफ जाएं, तो कंक्लूजन आज के लेक्चर का फिर हमारा यही होगा कि सबसे पहले तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। और इसके लिए हम ये जानने के लिए, जब हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स में हमें इसके सेक्शन 4 पे बात करेंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा कि सेल क्या चीज़ है, बल्कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या चीज़ है। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की जनरल डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 4 में बताई गई है, लेकिन उसके बाद इसके हम दो कैटेगरीज में आगे फर्दर सब डिवाइड कर सकते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं? एक एग्रीमेंट टू सेल है और एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है। दोनों कैटेगरीज में अगर हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल की बात करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज और होंगे, एग्रीमेंट टू सेल की बात करेंगे तो कॉन्सिक्वेंसेज और होंगे। तो इसलिए इनके कॉन्सिक्वेंसेज को नज़र अंदाज नहीं किया जा सकता। कॉन्सिक्वेंसेज को बेहतर तरीके से समझने और जानने के लिए इनका फ़र्क जानना ज़रूरी है। तो इसी के साथ ही आज का तो हमारा लेक्चर इधर ही कंप्लीट होता है। इसके बाद हम जो कमिंग लेक्चर हमारा आ रहा है इस पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल पे, ये टाइप्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड होगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ गुड्स वाला एरिया इंशाल्लाह अज़्ज़ा हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, और इसके साथ ही पेरिशिंग ऑफ गुड्स वाला एरिया जो है वो कवर करेंगे। तो इसी के साथ ही आज के लेक्चर हम कंप्लीट करते हैं। अगर आपको कोई आज के लेक्चर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं तो वो अभी आप पूछ सकते हैं। हैं जी किसी का कोई सवाल? क्लियर है सर। ठीक है जी, क्लियर है तो फिर अभी आपसे इजाज़त चाहते हैं जी। इसी के साथ ही अपना इन अल्फाज के साथ कि आप सब अपना बहुत सा ख्याल रखें जी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप सबका हामी नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।